हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेलकम टू माय क्लास अगेन। तो अभी तक हमने अपना लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को रिवाइज भी किया था और लर्न भी किया था, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम एंड लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उनके बीच में से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं हम, तो वो किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस तरीके से करते हैं आज वो सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो टुडेज टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ओके बेटा, parallel lines and a transversal. So parallel lines and transversal means if we have two parallel lines like this is line L and M. So here it is L is parallel to M. Okay, and there is a transversal. This is say LMN. Okay, so what is the properties? Which type of properties these two parallel lines can show right now? तो देखिए, this transversal divides these two parallel lines. So there are formed 8 angles. This is 1, 2, 3 and 4. Similarly 5, 6, 7 and 8. Okay, so we have 8 angles. So first we are talking about the corresponding angles. Right, कौन बताया corresponding angles क्या होते हैं? Right, corresponding angles क्या होते हैं बेटा? If we can cut these two figure, देखिए हम इसको सिमेट्री में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला सेक्शन अलग कट हो जाएगा, ये वाला सेक्शन अलग कट हो जाएगा, और मैं इस वाले सेक्शन को उठा के इस पे प्लेस करता हूँ, तो जो एंगल दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेगा वो उसका corresponding हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कट करके बाहर निकालता हूँ और इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, इफ यू कैन कट दिस फिगर एंड प्लेस इट ऑन द सेकेंड वन, then angle 1 and angle 5 can overlap each other. Angle 2 and angle 6 can overlap each other. That means angle 1 and angle 5 are corresponding angles. तो पहले देखते हैं corresponding angles कौन कौन से होते हैं। angle 1 and 5 हो जाएगा, angle 2 के साथ angle 6 हो जाएगा, एंगल 3 के साथ एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, एंड एंगल 4 के साथ एंगल 8 बनेगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, देन ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, then their corresponding angles are equal. आप क्या बोलेंगे? corresponding angles equal हैं। Similarly vice versa and vice versa. Vice versa means कौन बताएगा? Right. If the corresponding angles of two lines are equal, when these two lines are cut by a transversal line, then the other two lines are पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है? अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो पैरेलल होंगी लाइंस। ओके, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नाउ कम टू द एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। ओके, लुक एट हियर, these two parallel lines, the interior of these two lines are this section and exterior is this section. That means the whole part away from upward from L and downward from M are exterior angles, exterior part. तो ये आपका exterior part है, ये आपका interior part है। तो interior angles कौन से हो गए? this। तो interior angles कौन कौन से? पहले ये देखिए, interior angles कौन कौन से आपके पास? angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, right? तो these 4 are interior angles. exterior angles कौन से हो गए? angle 1, angle 2, angle 7, angle 8. तो these 4 are exterior. Now alternate interior कौन से हो गए? alternate interior, that means this and this are alternate interior, means those which are opposite to the
each other on transversal line. So means angle 4 and angle 6 and angle 3 and angle 5 are alternate interior angles. Okay, and if these two lines are parallel, then their alternate interior angles are equal. Means angle 4 angle 6 के equal होगा, angle 3 angle 5 के equal होगा. And if their interior angles, alternate interior angles are equal, that means these two lines are parallel, same as in corresponding angle. Means आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर दो lines आपके पास हैं और उनके इंटीरियर एंगल्स सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे. सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? लाइक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. अगर आपके ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? राइट, इन दोनों लाइंस पैरेलल भी हो जाएंगी, और अगर पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इफ टू पैरेलल लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन, टू द सेम लाइन, लिख लीजिए, टू द सेम लाइन, देन दीज आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. ओके, अगर दो लाइन है आपके पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एंगल 1, लाइन 2, लाइन 3. अगर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल टू 3, दैट मीन्स एंगल लाइन 1 इज पैरेलल टू 2. मीन्स ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व exercise 6.2 on the basis of these properties. Okay, so let's start exercise 6.2. बहुत ही easy है, ध्यान से देखेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से रिवाइंड करिए और फिर से सुनिए, ठीक है? बट आपको ये आना चाहिए. तो ना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2. The given figure is like this. There are two parallel lines. This angle is x, this angle is y, this angle is 130, and this angle is 50. Okay, so now you have to show that AB is parallel to CD. Means this is A, this is B, this is C, this is D. So given क्या आपको बेटा? Yes, आपको ये शो करना है. ओके, एंड एंगल x और एंगल y आपको गिवन है. सॉरी, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गिवन. ओके, तो यू हैव टू शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. ओके, तो देखिए इन दिस फिगर एंगल x प्लस 50 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 180. लीनियर पेयर एंगल्स, दिस प्लस दिस, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर linear pair angles. Okay, so that means x is equals to 130 degree. Similarly, angle y is equals to 130 degree because vertically opposite angles. देखिए ये दोनों vertically opposite हैं. Hence, angle x is equals to angle y. That means, this means that alternate interior angles of the two lines are equal. Therefore, these lines are parallel. ठीक है, दैट मीन्स देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, मैंने आपको बताया था. और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे. तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों बराबर हैं 130 डिग्री के. तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी था और सभी को समझ में आ गया होगा. बेटा क्वेश्चन के एग्जाम्पल जरूर करने हैं. एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इजी होते हैं. तो ध्यान से देखेंगे. हियर क्वेश्चन नंबर 2,
The given figure is like this. There are three lines. All three are parallel to each other. And this one is X, this one is Y, this one is Z. Sorry, this one is Y and this one is Z. And Y ratio Z given is AB, CD, EF. AB is parallel to CD is parallel to EF. Means all these three lines are parallel to each other. ठीक है. And Y ratio Z is equals to 3:7 and you have to find X. Okay, तो start करते हैं. देखिए solution. If this okay, तो देखिएगा ध्यान से. Angle Y ratio Z is 3:7. That means Y is equals to 3A and Z is equals to 7A. रेशियो इक्वल होता है तो बेटा दोनों को इक्वल रख सकते हैं. एंड वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. मीन्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. और दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो x प्लस वाई कितना है आपका? 180 डिग्री. ओके, एंड देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल, इफ AB is parallel to ED, say this is W. Okay, AB is parallel to ED. AB is parallel to ED. So this angle and this angle are corresponding angles. Angle X is equals to angle W. तो angle X लिख लीजिए, angle Y लिख लीजिए. इसको भी क्या है? हमारे corresponding angles हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये वाले को अगर कट करके इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके बाहर आ जाएगा. That means and angle W is equals to angle Z, vertically opposite angles. This implies angle X is equals to angle Z. Okay, that means यहाँ पे देखिए आप, this is equation number 1, this is equation number 2. तो angle Z plus angle Y is equals to 180 degree from equation 1 and 2. Therefore 3A plus 7A is equals to 180, means 10A is equals to 180 or A is equals to 18 degree. And angle X is equals to angle Z. That means angle X is equals to 7A because Z is equals to 7A. That means angle X is equals to 7 into 18. Okay, so 7 into 18 is 126 degree. आई होप सभी को समझ में आया होगा. दोबारा से देख लीजिए एक बार. हम भी दोनों का रेशियो गिवन था बेटा, तो हमने एक को मान लिया, वाई को मान लिया 3A, जेड को मान लिया 7A. ओके, और x प्लस वाई द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए आप, थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180. तो मीन्स x प्लस वाई 180. ओके, एंड आपको पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है आपकी? पैरेलल है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो x एंड w क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. एंड w एंड z वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे. मीन्स अगर आपका x w के बराबर है और z भी w के बराबर है तो मीन्स x और z बराबर हो गए. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड x की वैल्यू z की जगह यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट में. तो z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. z की वैल्यू कितनी थी? 7A. y की वैल्यू 3A. दोनों का सम 10A. a की वैल्यू हो गई 18. z एंड x कितना है? बराबर है. तो x की जगह आप z की जगह लिखते 7A और 18 into 7 126. ओके, आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कराता हूँ, काफ़ी अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1, दोनों का मिक्स है. आप दोनों आप ट्राई करके देख सकते हैं. तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 फिगर काफ़ी अच्छा है, देखिएगा. लाइक दिस, like heartbeat, है ना? This is P, this is Q, this is R, this is S, this is T. Okay, this angle is given 130, this angle is 110. You have to find this angle R. Okay, तो
क्यू आर एस निकालना है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, दिस लाइन एंड दिस लाइन है पैरेलल। तो गिवन क्या है बेटा, देखिए गिवन इज पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, the first thing. Second thing is PQR, angle PQR is equals to 110 and angle TSR is equals to 130. This is given. And find क्या करना है, जल्दी से बता दीजिए, एंगल QRS, QRS आपको फाइंड आउट करना है। खत्म करते हैं जल्दी से। देखिए अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी इसको सॉल्व करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, 2 पॉइंट एक्स, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे एक्स तक, एंड टी एस 2 पॉइंट वाई, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, हो गया वाई। तो देखिए दोनों लाइन्स पैरेलल दिखाई दे रही है ना, अब इजी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ये क्या हो गया, ये हमारा कैसा हो जाएगा, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइक दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ फॉर दिस लाइन, ठीक है, दो ट्रांसवर्सल हो गए, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ये वाला, एक हो गया हमारा ये वाला। अब देखते हैं, ओके, ठीक है, एंड ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ड्रॉ कर लेते हैं, पूरी ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, दिस से एल, ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है। एल की जगह इसको नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम दे, ए बी दे देते हैं, ए बी। ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी, एस टी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो देखिए बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखिए एंगल टी एस आर, टी एस आर, ध्यान से देखिएगा, टी एस आर, दोबारा से देखिए, टी एस आर 130 प्लस एस आर बी, एस आर बी, ये वाला एंगल क्या है हमारे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 degree, बताया था अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में। तो दिस इज 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू 180, तो मीन्स एंगल एस आर बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, 50 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन स्टार, ओके। अब देखिए बेटा, दिस प्लस एंगल दिस, हमें पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो मीन्स एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए पी क्यू आर कितना है हमारा 110, ये कितने दो एंगल से मिलकर बन रहा है, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 50, तो ये हो गया एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, तो 110 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 माइनस 50, दैट इज 60 डिग्री। इजी था, आपका 60 डिग्री। नोट करेंगे आराम से, ध्यान समझेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप चाहे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मत ड्रॉ करो, कंफ्यूजन हो जाएगी, मत करो, सिर्फ इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो, है ना। तो देखिए फिर से समझाता हूँ, अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सारी हटा दी, मैंने सिर्फ क्या किया बेटा, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी बस, ए बी। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 130, तो ये 50, और ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्योंकि ए लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110, तो ये कितना होगा, 60 होगा। ऐसे ही फाइंड आउट, ठीक है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ 6, आप करके देखिएगा एज एन होमवर्क, इजी है।
क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए. इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी पी क्यू आर, this is x, this is y, this is 127, this is 50. Find x and y. Okay, AB is parallel to CD आपको गिवन है. तो देखिए एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल APQ. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लाइंस पैरेलल, ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो गए. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बेटे ये कितना हो गया 50. इजी था, है ना. एंड एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 127. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of two opposite interior angles. करेक्ट है. ये वाला आपका एक्सटीरियर है, ये दोनों इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा पर ट्रायंगल में सिर्फ, है ना. पढ़ा है हमने. तो ये हो गया 50. ये आपका एंगल y, तो एंगल y कितना आ गया बेटा 127 minus 50, this is 77. Okay, so this is the last question of our today's class. There are two questions. Question number 3, sorry, yes, question number 3 and 6 is your homework. You can do it. If you are not able to solve these questions, write the comment on the comment box, then I will share the solution of this. And please like, subscribe and share my channel.